ये मेरा टॉपिक एक छोटा सा रिमेनिंग था बीच में कि हाउ टू पास ऑन सो मेनी वैल्यूज टू अ फंक्शन. So just now you can see that I'm passing the addresses of every element of an array. I'm passing the address of marks 0, then marks 1, then marks 2, then marks 3. Each addresses are copied in the corresponding pointers, and then we are displaying their values. Is that clear, students? Hello? Yes. Hello? Doubt है किसी को? Students? No, sir. किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. कितने अच्छे बच्चे, किसी को कुछ डाउट ही नहीं रहता है, राइट? चलो अब हम तुमको दोनों चीज दिखाते हैं, एड्रेस भी दिखाते हैं और वैल्यू भी दिखाते हैं साथ में, एड्रेस एंड वैल्यू बोथ. आई विल शो यू द एड्रेस एंड द वैल्यू बोथ. चलो हम लोग एक काम करते हैं, AF3 कर देते हैं, सेव एस AF3 एरे फंक्शन का थर्ड प्रोग्राम है. AF3 किया मैंने और मेरा इंटीजर आई है, कॉमा स्टार जे कर दिया और जे में मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं. जे इज नथिंग बट इज गोइंग टू टेक द एड्रेस. एड्रेस ऑफ व्हाट? एड्रेस ऑफ, इसको मेरा मार्क्स नहीं है तो नंबर एरे कर दिया, नॉट अ प्रॉब्लम, ये नंबर का एरे है. तो मैंने जे को बोला तुम फर्स्ट का एड्रेस ले लो. किसका एड्रेस ले लो भाई? फर्स्ट वाला नंबर, दैट इज num 0, दैट इज 45 का एड्रेस विल बी इन जे. 45 का एड्रेस विल बी इन जे, राइट? और अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा तुम लोग के लिए साथ चेंज कर देता हूं सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अब मेरा वाइल कितना वैल्यूज है भाई मेरे पास? 5 वैल्यूज. 5 वैल्यूज है हमारे पास में. वाइल आई इज लेस और इज इक्वल टू 4 बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम what you say is I will start from 0, so I'll put this as 0. I is less or is equal to 4, and then if it is less or is equal to 4, printf क्या करना है आपको? एड्रेस is equal to something new which you have not seen till date is %u. सर ये क्या है? Yes, what is %u? It's good that somebody has asked me this question. What is %u, sir? What is %u? Comma. And I wanted to print the address, so I'll say address of num I. %u says unsigned integer. Address is not never negative, it is positive. I want, when I say %d, it can take both value, negative, positive. When I say %u, it will never take negative value. It is going to be unsigned. It is going to always take the positive value. So address is, it is going to print the positive address, not the negative address. Unsigned, students, unsigned integer, only positive values. Okay, is that clear, students? Hello? Yes. Yes. So if positive and negative are there, then we'll use %d now always. अजी क्या बोल रहे हैं? If both What? positive and negative are there, Then I have to use both %d. अगर दोनों इंटीजर में दोनों पॉसिबिलिटी है, then I'll go with the %d. Now elements means the values which is there in my number. So how will I get that element वाला concept? Just look at this. मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे, ये मैंने स्लैश एन किया और मेरा फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस इज विथ j. So I will say star j because if I'll say j is just j, then what will happen? फिर क्या होगा? वो फर्स्ट का एड्रेस प्रिंट करेगा, राइट स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. और स्टार जे करेंगे तो क्या हो जाएगा? value. वैल्यू. Value. I plus plus मतलब now it should print the address of the next number, that is num1.
num0 is 45, num1 is 67, num2 is 34, num3 is 98, and so on. So address of next value, and then I'll say j plus plus. What is the meaning of j plus plus? What was your initial address? J में किसका address था? पहले का address था, मतलब 45 का, right? And when I say j plus plus, so this will take the address of which element? Students? Increment, I'll write down for you all, increment pointer to the next location. ये आपको कहां पे लेके जाएगा? Which address? Now the address of 67. You have given the initial address. जैसे हमने कितने सारे पॉइंटर के प्रोग्राम किए थे. A is the address of the first element. A plus 1, address of the second element. A plus 2, address of the third element. Right, students? So when I say j plus plus, whatever is j ka address, plus 1 will bring it to the address of 67. Right? Students? Getting my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So please have a look here now. Just have a look. Address element. पहला वो 45 का एड्रेस, और देखो पहले ये देखो एड्रेस, देखो कितना बाइट से इंक्रीज हो रहा है. पहले का है 16, 18, 20, 22, 24, 2 बाइट्स का चेंज है, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? और मैंने एक चीज ये बोला था कि अबाउट द एरेज, देयर ऑल एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, वन आफ्टर द अदर्स. So you can see the elements are there. Looking at the addresses, we can make out 65516, 65518, 65520, and so on, right? Students, clear है ना? Yes. So just try to understand this simple, very simple program. अगर आपको समझ रहा है तो, डाउट है तो मुझे बात करो, सर ये मुझे नहीं समझा. बहुत बेबी प्रोग्राम है तो सब, बट मुझे ऐसा लगा चलो बच्चों को बताना चाहिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स. इसमें एक नंबर मैंने डाल दिया, फर्स्ट नंबर का एड्रेस जे को दे दिया, और फिर मैं सबका एड्रेस प्रिंट करते जा रहा हूं और उनका वैल्यू भी प्रिंट करते चला जा रहा हूं. आगे चले नेक्स्ट. हाँ स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखते हैं, थोड़ा गेम करते चलते हैं हम लोग. सेव एज AF4.C. अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा नंबर एरे रहने दो, और अब मैं किसी को बुलाऊंगा, भाई तू डिस्प्ले कर दे, मेरा नंबर है और मेरा डिस्प्ले आएगा. डिस्प्ले, काइंडली डिस्प्ले, व्हाट टू डिस्प्ले, राइट फ्रॉम टेक दिस एड्रेस, नंबर लेके जाओ. लास्ट वाले प्रोग्राम AF1 में मैंने डिस्प्ले को 5 बार बुलाया था. अब मैं 5 बार नहीं बुलाऊंगा, एक ही बार बुलाऊंगा. बेचारे को बार बार परेशान नहीं करना है, नहीं तो बच्चे को अगर मम्मी बार बार बोलेगी ये लेके आओ वो लेके आओ, बच्चा गुस्से में आ जाएगा, राइट? एक बार बोलो ना मम्मी क्या लेके आना है, लिस्ट दे दो मुझे, राइट? तो मैंने डिस्प्ले को भी वैसे ही बोल रहा हूँ कि भाई तू एक काम कर, यहां से स्टार्ट कर और इसके बाद में 5 नंबर तुम डिस्प्ले कर देना. स्टार्ट विथ एड्रेस ऑफ num0 एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स यू हैव टू डिस्प्ले, 5 एलिमेंट्स. ये बहुत खुश हो जाएगा. अभी कितना अच्छा आज मुझे बताया कि सर मुझे बोला यहां से स्टार्ट करके 5 स्टेप काउंट करो, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू टुडे. वेरी गुड. और पहले वाले में क्या हुआ था कि आप बार बार उसको परेशान करते हो, राइट? ये अच्छी बात नहीं है, करना चाहिए ऐसा स्टूडेंट्स? नहीं करना चाहिए. तो अब मैं डिस्प्ले को बोला, डिस्प्ले बोला सर मैं कैसे काम करूं, बोला तुम क्यों डरते हो बाबा, इधर आओ. पहला इंटीजर स्टार n, यानी नंबर का एड्रेस n में आ गया, और क्या, उसका साइज कितना है नम, या कितने नंबर आपने पास किए हैं, साइज कितना है s, कितने नंबर हैं s को पता चल गया, और कहां से स्टार्ट हुआ है वो n को पता चल गया, राइट स्टूडेंट्स? यस और नो? कहां से स्टार्ट है वो n को पता है. चलो ये मैंने हटाया इसको यहां से, और मे बी इंटीजर I is equal to 1, I is less or is equal to 5, और मुझे एड्रेस भी प्रिंट करना है और एलिमेंट भी प्रिंट करना है, दोनों में प्रिंट कर देता हूं फिर से, कोई बात नहीं, करो ना सर. तो एड्रेस किसके पास है,
एड्रेस किसके पास है स्टूडेंट्स? एलिमेंट ही प्रिंट करते हैं, चलो ना चाहने दो, एलिमेंट प्रिंट करते हैं। एलिमेंट है स्टार एन, एन मतलब एड्रेस, स्टार एन मतलब एलिमेंट, और मैंने एलिमेंट ये मैंने किया प्रिंट। तो ये मैंने प्रिंट किया और ये एन पे आया था, फिर क्या करना पड़ेगा हमको? एन में स्टार्टिंग एड्रेस मिला है आई प्लस प्लस, और फिर मुझे एन प्लस प्लस करना पड़ेगा। एन को पहला एड्रेस मिला था, एन प्लस प्लस आप कितनी बार करोगे स्टूडेंट्स? कितनी बार करोगे एन प्लस प्लस? ये देखो आई प्लस प्लस, आई नहीं, क्या था तुम्हारा? साइज, है ना? आई को प्लस प्लस कितनी कितनी बार करोगे आप? साइज तक, राइट? ये देखो, ये देखो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमने क्या पास किया है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और क्या पास किया है? कितने नंबर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट से, आई इज इक्वल टू 1, इज आई इज लेस देन 5, यस। तो आप एक काम करो, पहला नंबर को डिस्प्ले करो। व्हाट इज एन? इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। व्हाट इज स्टार एन? इज 45। value. हाँ, तो अब एक डिस्प्ले हो गया, तो चलो आप, मेरा पांचों डिस्प्ले हुआ क्या? नहीं, तो आई विल इंक्रीज माई काउंटर, आई विल बिकम 2 एंड एन विल बिकम व्हाट? एन विल बिकम व्हाट? टेल मी फास्ट। एन 2. क्या, एन क्या हो जाएगा? 1. कब सुधरोगे तुम लोग? एन क्या होगा? व्हाट इज देयर इन एन? 3. व्हाट इज देयर इन एन? एन में क्या है अभी वो देखो पहले। एन को आपने ये दो लाइन समझोगे तो समझ जाएगा। एन में आपने क्या दिया है? 67. एन में क्या है? स्टार्टिंग जो भी स्टार्ट 5. हुआ था, एन में क्या है? एन में क्या है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। Address. एन में ये देखो, ये वाला एड्रेस आपने इसको दिया था, एन को दिया था, राइट? सपोज वो एड्रेस 1000 था, तो जब एन प्लस प्लस करेंगे तब वो कौन से एड्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा? 67 के एड्रेस पे आ जाएगा, राइट? Yes. समझ रहे हैं कुछ मैं बार बार क्या कहना चाहता हूँ? यू हैव गिवन एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट which is there with n. After printing the first value as a star n, I'm just changing it to n plus plus, so it will point to the next address. So n will take the next address, right? Students, hello. चलो मैं आपको Yes, sir. भी मैं साथ में दिखाता हूँ। एड्रेस इज इक्वल टू %u एंड एलिमेंट इज इक्वल टू %d। सो जस्ट n बोलेंगे तो एड्रेस, और स्टार n बोलेंगे तो वैल्यू, राइट स्टूडेंट? Yes. चलो अब थोड़ा CLR SCR भी कर देते हैं, पहले का जो भी प्रॉब्लम है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन, CLR SCR। ठीक है स्टूडेंट्स? सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने अनसाइंड इंटीजर लिया है ना, तो हाँ, उसका तो मैंने बुक में देखा था कि उसका साइज 4 है, तो ये 2 क्यों ले रहा है? इधर 2 है, क्या 2 है? सर एक बार आउटपुट दिखाओ ना इसका। बोलो। सर ये देखो 6 5 5 1 16 17 18 19 20 ऐसे दो बाइट्स लिए हैं। बराबर बराबर बराबर। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहे हो आप? आप थोड़ी देर यही हाँ तो स्टेटमेंट सुनो ना बेटा, आप यही जो स्टेटमेंट बात करो इसको 2 बार सोचो मैं क्या पूछ रही हूँ। आप वो जो एड्रेस है उसके अंदर कौन है ये पहले बताओ। जो 16 है, 65516, उसके अंदर कौन बैठा है? उसके अंदर आपने क्या 45 वो 45 का टाइप क्या है? इंटीजर 45 इंटीजर। इंटीजर कितना बाइट्स मेमोरी लेता है? 2 यस। उसके बाद फिर सेकेंड एलिमेंट जो होगा दैट इज 67, उसका एड्रेस क्या होना चाहिए? 6 5 5 1 8। राइट, आप समझा? उनके वैल्यूज क्या, अगर उसके वैल्यूज में फ्लोट कर दूंगा सो दे विल चेंज बाय 4 बाइट्स। अगर वो एरे के वैल्यू में लॉन्ग इंटीजर कर दूंगा तो दे विल 4 बाइट्स से चेंज होंगे, राइट? यस सर।
आपका आपका क्वेरी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे अनसाइंड करूं, अनसाइंड, अब अगर आपने बोला है कि अनसाइंड को 4 बाइट लगता है, राइट? यस आपने, सर। मैंने पढ़ा 4, तो अब 4 बाइट का जंप होना चाहिए, राइट? अगर वो लगता होगा तो। यस। अब हम चेक करते हैं, रन करो, नहीं लगा, 2 बाइट ही लग रहा है। यस सर। समझा? यस सर। यस। अगर मैं लॉन्ग इंटीजर कर दूं इसको, अब देखना, लॉन्ग करता हूं, लॉन्ग इंटीजर, ठीक है? और लॉन्ग इंटीजर करेंगे तो आप लॉन्ग इंटीजर पास कर रहे हो, तो यहाँ पे किसका एड्रेस दे रहे हो? यहाँ पे ये सब चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग इंटीजर का एड्रेस आएगा, राइट? यस सर। और वैल्यू कौन सा डिस्प्ले करने वाले हो आप? पॉइंटर कैसा चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ पॉइंटर? एलडी। एलडी, 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 एलिमेंट इज एलडी। चलो चेक करते हैं। आपका अब कितना जंप हुआ देखो जरा। हाँ यस सर, अभी हुआ ना? हाँ यस। यस, तो इट डिपेंड्स इनसाइड दैट, एरे के अंदर में कौन सा वैल्यू आपने स्टोर किया, उसके हिसाब से एड्रेसेस विल चेंज, राइट? 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, अगर कैरेक्टर स्टोर कर देंगे तो 1 बाइट का चेंज दिखाएगा, ठीक है? हाँ सर, मतलब वो मेरे को समझा। लेकिन इसमें एक बुक में वो जो लेटेस्ट सी यशवंत सर का वो मैंने देखा, उसमें शॉर्ट इंटीजर एक है, अनसाइंड इंटीजर एक है, साइंड इंटीजर एक है और एक अनसाइंड है। तो शॉर्ट इंटीजर में 2 बाइट रहता है %d, और अनसाइंड में 2 बाइट है %d, और साइंड इंटीजर में 4 बाइट्स है %d, और अनसाइंड इंटीजर में 4 बाइट से %u। तो मेरे को वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अभी समझ गया मेरे को आउटपुट। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। तो मैं सोचा कि छोटे छोटे प्रोग्राम हमारे स्टूडेंट के साथ में हम कर देते हैं, सो देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टीज, ठीक है? चलो, और हम अच्छे से कर रहे हैं। मेरा सपोज मैं AF3 लिया, ओपन AF3, ये मेरा AF3 है, और ठीक है, मेरे कुछ मार्क्स हैं, इंटीजर आई है, और आई लेट इट बी 0। पहले इसको मैं सेव कर देता हूँ, AF5 कर देता हूँ, AF5.c, आई 0 कर दिया मैंने। अब हम चेक करते हैं, आई मैं एक वाइल लूप ले लेता हूं, मार्क्स मुझे डिस्प्ले करने हैं, देखो कैसे होगा। वाइल आई इज लेस और इक्वल टू कितना? 4, राइट? आपको बढ़ाना है तो बढ़ा दो, तो फिर आपको कुछ बार बार ही वही नंबर आ रहे हैं, मे बी 78, और उसके पहले भी कुछ करना है तो कर दो आप, और 99, किसी को 100 भी कर दो, कोई बात नहीं है सर। वहां नहीं मिलेगा, यहाँ तो हम अपने हमारी मर्जी का मार्क्स डाल सकते हैं ना। ठीक है, कितना नंबर हो गया अभी तक हमारे पास? 8 मार्क्स, राइट? कितना, 7 की 8? 8 है, 8 ना स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। अब हम लोग चलो चेक करते हैं, ये 8 डिफरेंट मार्क्स को हमको डिस्प्ले करना है, तो हम बोलते हैं printf एड्रेस। एड्रेस की बात करो, एड्रेस कैसे आएगा? /n एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू %u, कॉमा। एड्रेस किसका एड्रेस चाहिए सर आपको? हमें पहले वाले का एड्रेस चाहिए, मार्क्स। मार्क्स ये पहला एलिमेंट का एड्रेस हो जाएगा। अभी पहला एलिमेंट का अगर वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगा? उसका एलिमेंट क्या है? तो आपको बोलना पड़ेगा एलिमेंट, राइट? एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट? %d। हाउ विल यू गेट दिस? आई विल से मार्क्स आई, राइट? चलेगा स्टूडेंट्स? यस सर। Yes.
और अगर शायद अब तुम्हें कुछ याद है या भूल गया, तुम्हारा मेमोरी को लोड करो और फिर हम बात करते हैं। कैन आई से द एलिमेंट, कैन आई से द एलिमेंट इज ऑल्सो, एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंट डी। इफ यू आर एग्री विद दिस, आप मुझे बोलोगे सर यस ये करेक्ट है। क्या मैं बोल रहा हूं स्टार मार्क्स प्लस आई, क्या कह रहे हो आप? बोलो जल्दी से। भूल गया सर, ये तो भूल गया मुझे। अरे तुमको मैंने सिखाया था ए ऑफ 2 इज इक्वल टू स्टार ए प्लस 2, होता था कि नहीं होता था? हाँ स्टूडेंट्स, यस। तो वही तो है। मार्क्स आई जो है उसको मैंने कैसे लिख दिया, वैसे ही तो लिख दिया, और क्या किया मैंने? हाँ, दैट इज इन जनरल अगर मुझे करना है ए ऑफ आई विल बी स्टार ए प्लस आई, बस, और क्या है? इज देयर इज एनी चेंज इन दिस? नो सर। नो। सो इवन द एलिमेंट वी कैन फाइंड आउट द वे आई हैव रिटन हियर। और भी देखो, printf element, will you get the element is equal to percent d, कॉमा, देखो ध्यान देना, स्टार उल्टा भी चलेंगे, आई प्लस मार्क्स, आई प्लस मार्क्स, वाओ, 0 प्लस मार्क्स, एड्रेस, मार्क्स मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड आई जब 1 होगा 1 प्लस, अभी देखो एड्रेस प्लस 1 करो तो नेक्स्ट एड्रेस, या 1 प्लस एड्रेस करो तो भी नेक्स्ट एड्रेस, राइट स्टूडेंट्स? आप 1000 यस। प्लस 1 करो तो भी 1002 होगा, या 1 प्लस 1000 करोगे तो भी 1002 ही होगा, राइट? Yes. सो यस, ये भी हो गया। अगर और अच्छे से ध्यान दोगे तो आई एम राइटिंग वन मोर, printf element is equal to, element is equal to percent d and comma i of, ओ सर आज क्या हो रहा है, मार्क्स, सर ये सब तो देखा ही नहीं था मैंने, हाँ, और बाद में मैं आई प्लस प्लस, और ये मैंने क्लोज किया, ये मैंने गेट सी एच किया, और ये मैंने प्रोग्राम को क्लोज किया। इतना सिंपल प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं सिखाया। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाट इज माय एम हियर, आई जस्ट वांटेड टू से हियर कि लाइक a of I is equal to star, a of I is equal to I of A is equal to star A plus I is equal to star of I plus A. All four are one and the same thing. आप a of I बोलो मतलब आप बोलो a of 2, a का सेकेंड एलिमेंट क्या है, या 2 of A, सेकेंड एलिमेंट ऑफ A क्या है, a of 2 और 2 of A of 5 और फिफ्थ एलिमेंट ऑफ A। स्टूडेंट्स, कोई कह रहा है आपको a of 5 क्या है सर, तो दैट इज a of 5, और व्हाट इज फिफ्थ ऑफ A, दोनों एक ही बात है। स्टूडेंट्स, हेलो, Yes, sir. प्लीज डू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको, और आप a5 मतलब क्या होता है, a5 का मतलब था a plus 5, और दैट इज सिमिलर टू स्टार 5 plus a, which is similar to 5 of a. All 5 of them are one and the same thing. They are going to give us the same output. Is that clear, students? यस। Yes. तो जरा हम ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देंगे प्रोग्राम पे, मैंने ऐसे कमेंट के लिए रखा है आपको, I0, 0 is less than 7, yes. So address, what is the address of my first marks 0 का address, that is 99 का address, it will print that. Then it is going to print the value 99, then से third सब 99 आएगा बाद में, 4 बार 99 आएगा, right?
चलो चेक करते हैं, कंपाइल, रन। ओ हो सर ये क्या हुआ? चलो थोड़ा थोड़ा स्पेस करो सर, थोड़ा थोड़ा स्पेस करो सर। चेक करते हैं, फिर क्लियर स्क्रीन को भी बुला देते हैं, भाई जरा पीछे वाला क्लीनिंग कर दो, फिर से रिहर्सल, क्लियर स्क्रीन। ओहो देखो जरा, 10 पे आपको 99 4 बार मिल रहा है, राइट, विथ 4 डिफरेंट वेज ऑफ प्रिंटिंग द वैल्यू, राइट। Marks of I, star marks plus I, star I plus marks, and I of marks, right? Yes or no, students? Hello? Or 7 कितना 8 elements था, just look at that, like how they are changing their addresses. 10 के बाद 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24, right? Students, यस Yes, sir. जरा ध्यान, कुछ नहीं है इसमें, हमने क्या बताया, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दीज 4 आर वन एंड द सेम थिंग। ए ऑफ आई इज इक्वल टू आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्टार ए प्लस आई इज इक्वल टू स्टार आई प्लस ए। ये सब छोटा छोटा चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचर माइट टेल यू जस्ट ए ऑफ 2, बस विल नेवर टेल यू दैट 2 ऑफ ए भी होता है और स्टार ए प्लस 2 भी होता है, और स्टार 2 प्लस ए, दे आर ऑल वन एंड द सेम थिंग, राइट? Shall I continue? Yes, sir. चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब सर ये तो हमें समझ गया कि आप वन डायमेंशनल एरे को कैसे पास करते हैं, लाइक एक एरे है वन डायमेंशन, दैट इज, इट हैज गॉट ओनली दैट, बट हाउ विल यू पास ऑन द टू डायमेंशनल एरे टू द फंक्शन, टू डायमेंशनल? So I'll save that af6.c, af6.c. So I am going to have one two-dimensional array, और 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 2 के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो क्या साइज रखना है बाबा 2 डायमेंशनल के लिए? सपोज आई एम हैविंग एन एरे ए, एंड क्या वैल्यू लेना है सर आपको? मे बी से 3x4, 3x4 मतलब इसमें 3 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा, 3 रो 4 कॉलम्स, आपकी मर्जी, मैंने ऐसे ही 1 2 3 4, वेरी गुड। और बाद में ये मैं रो को ब्रेक कर लिया, और बाद में मेरा सेकेंड रो, मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, बट इन मेमोरी देयर इज नथिंग लाइक रो एंड कॉलम। एक रो है, फर्स्ट रो 4 एलिमेंट, सेकेंड रो 4 एलिमेंट, थर्ड रो 4 एलिमेंट, सो अगेन आई कैन हैव 5 6 7 8, एंड देन this is second row 4 element, third row I can have anything, right? Maybe 9 comma 0 comma कुछ भी कर दो, 7 comma 4, और I'm closing my array now. So ये मेरा array है, which size is 3x4। अब मैंने क्लियर स्क्रीन को बुलाया और मैं एक दोस्त को बुलाता हूँ, डिस्प्ले प्लीज आप हमारे यहाँ आओ, आई विल गिव यू टी एंड कॉफी, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू डिस्प्ले माय ए। करेंगे सर? ए मींस एड्रेस, which element का एड्रेस? even though it is two dimensional array, it is going to be the address of the first element, first row, first element, that is 1 का एड्रेस मिलेगा उसको। और मैं उसको बताऊंगा सर मैं आपको 3 रो है उसमें और 4 कॉलम है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे आपको सर, आप इतना क्यों टेंशन, आई डू दिस जॉब, नॉट टू वरी अबाउट दिस, राइट? तो चलो अब हम डिस्प्ले को ट्रेनिंग देने जाते हैं। Display has to work now. I am closing this now because the display is being called, and display के बाद में आपको चाहिए तो get ch कर दो और डिस्प्ले को ट्रेन करो आप।
डिस्प्ले। आपने क्या दिया है सर? ए मतलब क्या दिया? एड्रेस, राइट? ए मतलब क्या दिया स्टूडेंट्स? एड्रेस, राइट? और एड्रेस को किस में स्टोर करना चाहिए? हेलो, एड्रेस को किस में स्टोर करना चाहिए? काजोल, हेलो, हमें ऑडिबल टू यू ऑल? अजिल, Yes. where to store the addresses, Ajil? Ajil, Ajil, is anyone is present here? I am audible here. हाँ बोलो। कैप। सो एड्रेस को हम कहाँ स्टोर करते हैं? पॉइंटर्स में, राइट? Mm. हाँ या ना, कुछ तो बोलो। एड्रेस देंगे तो एड्रेस स्टोर करने के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर? पॉइंटर, राइट? तो आई एम पासिंग ए मीन्स एड्रेस, और वो एड्रेस को स्टोर करने के लिए आई रिक्वायर वन पॉइंटर। व्हाट इज द टाइप ऑफ ए? इंटीजर। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ माय पॉइंटर? इज इंटीजर पॉइंटर। And 3 is nothing but the number of row, and 4 is nothing but the number of columns. So 3 column tha, row tha, और 4 तुम्हारा is talking about the, what you can say is the column. Now I have to, I required help of I and J. I will look into the row and J will look into the column. I will see to it that I have displayed taken care of 3 row. So when I is in the first row, J has to display 4 values, column values. When I is in the second row, again J will take 4 values, and so on. So when I'm starting with this for I is equal to 0, I is less than row. I को कितना रो डिस्प्ले करने का है, जो भी वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा ऊपर से। तो I को अभी 3 रो बताया गया है, तो I will look into the 3 row. And J has to follow column. J will display how many columns? Right now, it has received column का value 4 है, so J will work 4 times. So J is less than column. J is less than column. J plus plus. And then very important. अब पता नहीं first time ऐसा हम लिख रहे हैं. First time we are writing like this. What? I wanted to display the value. डिस्प्ले करो सर। %d किया मैंने, %d किया मैंने, और हमारी वैल्यूज हैं कहाँ? नम मतलब किसका एड्रेस? नम मतलब किसका एड्रेस? स्टूडेंट्स जरा बताओगे मुझे? हेलो, हेलो, नम मतलब किसका एड्रेस? बोलो। Numbers hopper. तुम लोग कभी सुधरोगे? चलो अब मैं तुमको थोड़ा ट्रैवलिंग करा के लाता हूँ। ये प्रोग्राम यहीं होल्ड करूंगा, नहीं तो तुम लोग को कुछ समझेगा नहीं है। ये प्रोग्राम को यहीं रहने दो थोड़ी देर, हम जाके घूम के आते हैं। So let us go back to my, what you can say is my board. बोर्ड में जाते हैं।
Yes, I know, Cap, I'm on mute. I'm just waiting for this board to get loaded. My board is visible, students, now? हाँ स्टूडेंट्स, बोर्ड विजिबल है क्या? हेलो, Yes, sir. जरा ध्यान देखो अभी आप अगर मेरे पास एक एरे है और मे बी यही साइज रखो 3x4 या जो भी रखना है आपको, 3 3 4 है, इंटीजर है और मे बी से वही नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 5 जो भी ऐसा लेना है ले लो, क्लोज दिस। एंड हमें अगर इसको डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स तो मैं बोलता हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन कितना रो है भाई? 3 रो है, i प्लस प्लस, एंड फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम। कितने कॉलम है भाई यहाँ पे? रो का वैल्यू 3 था, रो का वैल्यू यहाँ पे 3 है और कॉलम का वैल्यू 4 है, ये नोट डाउन करके रखा है हमने। एंड देन j प्लस प्लस। और हम कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे? आपके पास एक मेथड था कि आप %d बोल के आप बोलोगे aij, so I is 0, j is 0, so you can display 0 0 0 0 मतलब कौन सा? ये वाला। बाद में कौन चेंज करेगा? j चेंज करेगा, राइट? 0 1 0 2 0 3 ऐसा j वाला सब 4 तक 3 तक जाके खत्म हो जाएगा, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? हेलो? Yes, sir. और वो डिस्प्ले होने के बाद में हम चले जाते हैं /n, मतलब एक लाइन डिस्प्ले हो गया तो नेक्स्ट लाइन में जाओ। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद में i becomes 1 एंड j will again start from 0। तो फिर क्या डिस्प्ले चालू होता है पता है? 1 हो जाएगा तो 1 0 1 1 1 2 1 3, और फिर जब ये खत्म हो जाएगा j का वैल्यू, सो देन अगेन इट विल जंप टू द नेक्स्ट लाइन एंड अगेन स्टार्ट फ्रॉम i will become 2, j will become 0, so 2 0 2 1 2 2 2 3, राइट? यही होता है ना स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes. Yes. और अगर इनको मैं इनके सबके एड्रेस बता दूं, सपोज मेरा 1 इज एट मे बी से 1000 में है, तो 2 कहाँ पे होगा? 1002 में, 1004 पे, 1006 पे, 5 होगा 1008 पे, 1010 पे, 1012, 1014 और 1016, 1018, 1020 एंड 1022। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यही होगा ना? हेलो? Yes, sir. सबको 2 बाइट से इंक्रीज किया। अगर ए बोला है अभी, अगर मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन रो i प्लस प्लस, फॉर j इज 0, j इज लेस देन कॉलम j प्लस प्लस, printf %d, मैं जो लिख रहा हूँ वही बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस i इंटू कॉलम प्लस j, और ये प्रिंट होने के बाद में गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड क्लोज दिस। चलो अभी ये डायग्राम के हिसाब से जो मैंने दिया है, ए का एड्रेस क्या है उतना बताओ मुझे। ये कहाँ तक जाएगा? रो कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा, राइट? मतलब लास्ट वैल्यू इसका 2 होगा, राइट? लेस देन 3 मतलब ये क्या पिकअप करेगा? 2। यस और नो? कितना रो है उसमें स्टूडेंट? एरे में कितना रो है? 3 रो, राइट? हेलो? 3 रो है और कॉलम कितना है? 4। कॉलम कितना है? 4, राइट? That is for us, but where those values are stored? They are stored in the 0 row, 1 row, 2 row.
मतलब हमारे हिसाब से लास्ट रो कहाँ पे खत्म होगा? 2 पे खत्म होगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और कॉलम कहाँ पे खत्म होगा? 3 पे, राइट? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कॉलम, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, राइट? Yes, इज दैट sir. क्लियर? इतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? Yes, clear. और जब मैं ए बता रहा हूं, व्हेन आई से ए, व्हाट इन बाय ए हियर? ए का मतलब क्या होगा? ए मतलब ऑलवेज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यस, नो? हेलो? Yes. इतना तो मैंने बहुत बार बताया, ए मतलब एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ लुक एट दिस लाइन, अच्छे से ध्यान दो। ए कितना है अभी मेरा? 1000। आई कितना है? आई कितना है यहाँ पे देखो? 0। जे कितना है? 0। कॉलम कितना है? कॉलम कितना आया है? 4। कितना है? 4। कॉलम इज 4, राइट? कॉलम कितना है स्टूडेंट्स? 4 ना? 4. तो जरा कैलकुलेशन करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। 1000 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0, तो ये कितना आया हमारा? 1000 ही आया। कितना आया? 1000. 1000 आया। 1000 आया है, तो अब अगर मैं बोलूंगा स्टार एट 1000, तो क्या डिस्प्ले होगा मेरा? वैल्यू वैल्यू मतलब 1 Value होगा, राइट? 1 होगा, राइट? 1. चलो अब थोड़ी देर में आप Yes, बताओ sir. अब मुझे ये बताओ, मैं फॉर्मूला नोट डाउन करके रखता हूँ यहाँ पे, सब कुछ नोट डाउन करके रखो। आई इज 0, जे वॉज 0, कॉलम वॉज 4, राइट? कॉलम वॉज 4। नाउ व्हाट विल चेंज एज पर दिस लूप? अब क्या चेंज होगा? जे चेंज होगा पहले, राइट? जे विल बिकम 1, राइट? 1. तो ये जो फॉर्मूला यहाँ नोट डाउन है, दैट इज 1000 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1, तो कितना हो गया ये? 1001 कब सुधरेंगे हम? 1001. कब 1000 सुधरे? 1000 प्लस 1 कितना होता है? 1000 प्लस 1? व्हाट इज 1000 प्लस 1? 1002 1002। व्हाट इज द वैल्यू एट 1002? यहाँ पे क्या दिखाई पड़ा था? 1002 में क्या है? 2 2. 2। So what this will display now? It will, after 1 it will display 2. अब क्या चेंज होगा बाद में? कौन सा लूप पहले खत्म होगा? J, right? So J has taken 0, J has taken 1, now J will take 2, right? J will take 2. So what is your answer now? 1000 plus 2? thousand 1004. What is star at 1004 यहाँ पे? What is star at 1004? Is it 3? yes Yes. Now what will change? J will be 3, right? J will be 3. Why 3? Because J is looking after columns. I is looking after row. ये column देख रहा है, ये row देख रहा है. तो I am into the 0 row. First row में J कितनी बार change होगा? 4 बार. So now 1000 plus 3. What is 1000 plus 3? 1000. 1006. So what is star at 1006? 4. बोलो सर. Star at 1006 क्या होगा? क्या आएगा आंसर स्टूडेंट? 4. 4 आएगा। वेरी गुड। चलो अब हम 1006 तक पहुंच गए हैं। तो नाउ जे, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ जे? 0. 4, राइट? 4 होता है, बट द कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, इट कैन नॉट गो अहेड, राइट? कैन इट गो अहेड? नो, नो। तो No. ये फिर जंप करेगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन में। ये वाला प्रिंटफ करके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जे का सब खत्म हुआ तो ये लाइन पे आ जाएगा। 0 वाला लाइन खत्म हुआ, अभी नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये जब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो आई विल बिकम 1। नाउ आई हैज बिकम 1, नाउ जे विल बिकम अगेन, स्टूडेंट्स, जे विल अगेन बिकम 0. 0। तो अब जरा कैलकुलेशन हम करते हैं। हमारा फॉर्मूला वही रखो, राइट? हमारा फॉर्मूला था a प्लस आई इंटू कॉलम
प्लस जे। अब जो वैल्यू है 1000 है, प्लस आई हैज बिकम 1 into 4 plus j has become 0. So ये हुआ है 1000 plus 4. What is 1000 plus 4? 1008. 1008. 1008. What is star at 1008? मतलब ये 1008 मतलब किसकी बात कर रहा है ये? जरा देखो कहाँ है 1008? It is talking about this 5, right? 5. Five. Next line में 5 को display करेगा. What will change next? What will change next? J. J, very good. So now J, earlier it was 0. Now J का वैल्यू अब ये 1 हो, 1. ये 1 सब्स्टिट्यूट हुआ, तो ये यहाँ पे ये मेरा 1 into 4 प्लस, तो अब कितना हुआ 1000, ये 1000 प्लस 5, 1000 प्लस 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 1010. 1010. What is the star at 1010? Just check. Value at 1010. 6. 6. 6. Now what will change? Tell me first. J. J will be 2. J. ये भी 2 हो जाएगा. So 1000 plus 6. 1012. 1012. क्या प्रिंट होगा? 7. 7. Very good. Now what will change? J will change. J. So 1000 plus 7. 3. 1000 plus 7. 1014, right? 14. Yes. So then this will print 8. Now 8. J is done. J का काम खत्म. J is over now. With the help of this slash n line, it will jump to the next I. Next I मतलब फिर से ये इधर घूम जाएगा, right? ये जो मैंने दिखाया था ये नेक्स्ट आई को पिकअप करेगा. थर्ड रो, ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, थर्ड रो आ जाएगा. नाउ थर्ड रो आएगा तो आई विल बिकम नाउ 2, राइट? I will become 2 Yes. and J will become what? 0. J will become 0. So I'm writing J as 0. I has become 2, J is 0. Just look at your formula now. क्या formula था तुम्हारा? फिर से हम वर्कआउट कर देते हैं formula को. Formula was, sir, A plus I into column plus J. ये मेरा formula था. A started with 1000 plus I has become 2 just now. Column is 4 plus 0. Oh, बोलिए सर. बोलो स्टूडेंट्स. 1000 plus 8. 1016. 1016 मतलब क्या प्रिंट करेगा? जरा देखो 1016 कहाँ पे है, किसके लिए बताया था 9. यहाँ पे? 9 के लिए. यस, तो ये 9 को प्रिंट करेगा. अब इसके बाद कौन चेंज होगा? आई की जे? J. J will change. So this is this now. This will become J will become 1. 1000 plus 9. 1018. Whatever. 18. 1018. Yes, तो 18 में जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा. फिर J चेंज होगा, फिर उसका, राइट? ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. में चल ये कॉन्सेप्ट में चल रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन. Which line? A plus I into column plus J. So A, this is your base address. ये जो तुम्हारा रहता है base address, that is address of the first element, starting address. This I is your first for loop, first loop. J तुम्हारे क्या होते हैं? Number of columns होते हैं. So first for loop is multiplied with the number of columns plus ये जो है J है तुम्हारा second for loop. Look at the formula कैसे बना है. Second loop. A is your base address. कोई भी array होगा उसका name plus first for loop into the number of columns plus second for loop. First for loop into the number of columns plus second for loop. Students, अगर मुझे मान लो कोई B array है और उसमें 5 6 साइज है, 5 6, राइट? अगर उसके सभी एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? फॉर्मूला मैंने क्या बताया? व्हाट इज माय फॉर्मूला स्टूडेंट्स?
हेलो, ये सब क्या चल रहा है? A plus I. हाँ, तो अगर b है तो देखो कैसे बन लिखेंगे हम इसको, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, बिकॉज ये 5 है तो ये 4 तक चलेगा, राइट? और ये 6 Yes. है तो ये 5 तक चलेगा, तो आई राइट फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन व्हाट, ये लेस देन 5 तो ये लेस देन 6, j प्लस प्लस, and I'll write printf %d. Base address, that is b plus I into number of columns. Number of columns कितना है यहाँ पे, 6. तो ये इसको किसी में स्टोर कर दो, ये कॉलम बोल दो, इसको रो बोल दो. तो कॉलम प्लस फर्स्ट फॉर लूप इनटू द नंबर ऑफ कॉलम प्लस j, और उसके अंदर स्टार कर देंगे तो you'll get the value at address, right? Yes. Yes. तो ये मेरा, अगर ये चीज समझ गया है तो दिस इज वेरी इजी नाउ स्टूडेंट्स. ये चीज अगर समझा है तो वही तुम्हारा वहां सी प्रोग्राम में लिखा है. ये सबको नहीं समझेगा, जो रेगुलर बच्चे हैं दे विल अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर. सो लेट मी गो अहेड विद दिस. So this is what I have written. I have not written, still I have not written something here, that is star. So let me write down the star here so that I could see the value. Num plus first for loop into number of columns plus j and star value at address. Right, students? Is that clear? Yes. बहुत ही, तो मैंने डिस्प्ले को बुलाया और मैंने डिस्प्ले को बोला चलो ये डिस्प्ले करो. डिस्प्ले बोलता है डोंट वरी सर, अभी कर रहे हैं. देखो डिस्प्ले अब मेरा काम कर रहे हैं, और आई एम क्लोजिंग माय डिस्प्ले. चलो इसको, हमारा प्रोग्राम को सेव करो. सेव, डन. एरर कहाँ से बता रहा है, मिसिंग कहाँ है? ओ, सेमीकोलन. और क्या मिसिंग है, क्या कह रहे हैं? I is assigned a value that is never used. किधर I is assigned a value that is never used? ओ, बोले सर ये क्यों करके रखा है? निकाल दिया बस. और क्या प्रॉब्लम है? इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर बोलता है. ओह, इलीगल बोलता है सर, हम लीगल कर रहे हैं, बोलता है इलीगल है. स्टूडेंट्स, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, हाँ, क्यों इलीगल है सर? ऐसा क्या इलीगल है इसमें? व्हाट इज इलीगल ओवर हियर? स्टार नम, एड्रेस ए का एड्रेस ए नम में आया, और नम प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे. Function should return a value. Function should return a value. I don't want to return any value. तो चलो मैं थोड़ा लीगल कर देता हूँ बाबा. void display, और लीगल बोलता है तो इंटीजर कि मैं एक एड्रेस दूंगा और उसका रो एंड कॉलम दूंगा, और फिर काम करो आप मेरा. अब बार मुझे परेशान मत करो भाई, और मैं आपका सब काम कर देता हूँ. void डन. अभी क्या प्रॉब्लम है? सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन. सस्पिशियस बोलते हैं तो, और भी कुछ कह रहा है. इलीगल पैरामीटर नम इज नेवर यूज्ड. नम इज नेवर यूज्ड कर तो रहा हूं, और कितना यूज करूं? नम प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हुआ? वही तो मुझे बताना है कि हाउ यू पास ऑन सो मेनी वैल्यूज, 2-dimensional array to the function, 3-dimensional array to the function. अभी तो हमने 1-dimensional देखा था, 2-dimensional कैसे पास करेंगे? राइट, फिर पूरा बोले 3-dimensional, कोई पूरा बुक ही पास करना है फंक्शन को. प्लीज टेक ऑल दिस नंबर्स एंड डू माय जॉब. तो हम उसको करने का कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स. नंबर कहीं सिली मिस्टेक्स होगा कहीं. एक सेकेंड.
डिस्प्ले तो ठीक है, सर वहाँ वॉइड डिस्प्ले के लिए वो सेमीकोलन नहीं डाला है। इधर नहीं। सर वो नीचे 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 वाला वॉइड डिस्प्ले। लास्ट वाला ये हाँ ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है बेटा, ये तो हम वर्कआउट कर लेंगे। देखो एक चीज और याद रखना है बिफोर, ये तो कभी कभी हमारे क्या बोलते हैं कंपाइलर में भी प्रॉब्लम होते हैं। हम कभी भी फंक्शन को, सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकोलन स्टूडेंट्स? हेलो, कोलन हम कभी डालते हैं, कमेंट्स में लिखना है तो क्या बोलेंगे? टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट, राइट? हम किसी चीज को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन, राइट? यस और नो स्टूडेंट्स? yes, जैसे हमारा डिक्लेरेशन खत्म हो गया तो मैंने सेमीकोलन कर दिया, मेरा एरे डिक्लेयर हो गया तो सेमीकोलन हो गया, मेरा क्लियर स्क्रीन हो गया तो सेमीकोलन हो गया, डिस्प्ले को कॉल कर दिया तो सेमीकोलन हो गया। बट आई कैन नॉट राइट सेमीकोलन हियर। नहीं तो बोलेगा ये डिस्प्ले कुछ नहीं करना है, इसका काम खत्म, इट्स एंड ऑफ दिस डिस्प्ले। अरे बाबा एंड नहीं, उसको इट हैज टू डू लॉट ऑफ जॉब, सो आई नेवर लाइक मेन के बाद में आपने तुरंत सेमीकोलन डाला क्या इधर? नहीं सर, कभी नहीं डालते। क्यों? नहीं। कब क्यों नहीं? क्योंकि सर वहां से तो स्टार्ट होता। हाउ कैन यू डिक्लेयर दैट दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट? वी कैन नेवर राइट सेमीकोलन। आर यू एवर राइटिंग सेमीकोलन हियर? मतलब मैंने यहाँ पे फॉर लूप किया, सेमीकोलन किया, कैन यू राइट सेमीकोलन हियर? नो सर, if I'll write yes, then this will not repeat. You are saying this is the end of for loop. एक बार चलेगा बस, दोबारा रिपीट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको टर्मिनेट करा दिया, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं yes, आ रहा है? कैन आई राइट सेमीकोलन हियर? कैन आई राइट सेमीकोलन हियर? वी कैन नेवर राइट। अगेन दैट इज द एंड ऑफ सेकंड फॉर लूप। एक बार जे 0 चलेगा, बाद में घूमेगा नहीं, रिपीट नहीं होएगा। जे विल नेवर बिकम 1 बिकॉज यू सेड दैट इज द एंड, राइट स्टूडेंट्स? जैसे Yes. yes, sir. आपने अभी अभी लिखा था while I is less or is equal to 5 और अंदर बहुत कुछ लिखा है, ऐसा कुछ कुछ लिख दिया था। और ये while कब घूमेगा? अगर इस सेमीकोलन डाल दिया तो एक बार चलेगा बस, फिर नहीं चलेगा, रिपीट नहीं होएगा। स्टूडेंट्स आप बताओ क्या करना है? हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लूप को कभी भी, फंक्शंस को, लूप को जब हम उनको डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन नहीं करते हैं। इफ लिखा आपने, कुछ कंडीशन डाल दिया, इज ग्रेटर और इज इक्वल टू 10, कुछ भी ऐसे, तो प्लीज नॉट टू पुट दिस, नहीं तो बोलेगा एंड, वो चेक भी नहीं करेगा। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. Yes. Yes, please. So not to put semicolons. Where? With the loops, with the control statement, with the functions. जैसे फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन को भी काम करना बाकी है और काम हुआ नहीं, बोले सेमीकोलन, स्टॉप। ये क्या है सर? लेट मी, मेरा नाम लिया, याद किया और फिर तुरंत बोलते हो सर स्टॉप। मैं काम क्या करूं? हाँ, as and when the function which is being called will see the semicolon, that function will understand that I have been given the instruction to stop my work, not to continue. स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। आपको क्या करना है बोलो स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है? work कंटिन्यू करना है कि स्टॉप करना है? continue कंटिन्यू करना है। Continue. कंटिन्यू करना है, तो प्लीज नॉट टू पुट द सेमीकोलन। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट बाबा इसको कौन सा बैक्टीरिया लग गया है मेरे प्रोग्राम को। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मेडिसिन फॉर दिस। सो प्लीज यू ऑल हेल्प अस स्टूडेंट्स कि कहाँ पे प्रॉब्लम है इसको।
Num is never used. I'm you declaration terminated incorrectly. ओ रुको रुको, ओ ये एक्स्ट्रा सब कहाँ से आया? इसकी वजह से प्रॉब्लम है क्या? समझ गया सब। ये अनवांटेड जो चीजें पड़ी है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए प्रॉब्लम है। ओ चलो बाय। तो नाउ लेट अस सी, इसको सेव करो पहले, सेव दिस। एक अब कहीं कुछ गड़बड़ है। सस्पिशियस क्या है? व्हाट इज सस्पिशियस ओवर हियर? एरर में है। सस्पिशियस अभी भी कहीं कुछ छुपा होगा स्टूडेंट्स। इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। एरर तो एक बता रहा है कंपाइलर, वार्निंग 2 है, ठीक है। एरर में क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया है, कहीं कुछ रह गया है ऊपर नीचे। स्टूडेंट्स देखो कैसे ढूंढ लिया, बाकी का एरर निकल गया, कहीं तो कुछ। हाँ यस, ये जरा सा सस्पिशियस ने पूरा लाइफ को खराब कर दिया। देखा क्या सस्पिशियस था स्टूडेंट्स? क्या सस्पिशियस था? सर हाँ, कॉमा। देखो ये हालत होती है, कभी कभी छोटी सी गलती, हमारी गलती हमको जल्दी से नहीं मिलती है, उसके लिए तुमको तुम्हारा चीज नहीं मिलता है, फिर मम्मी को आना पड़ता है, ढूंढ के देती है, 4 बात सुनाती है फिर, राइट? होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? यस, तो सर Yes, sir. ये निकल गया है, जरा सा एक कॉमा नहीं मिल रहा था। बोलो ये हालत है। तो अब हम रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को, और आउटपुट देखो बाबा क्या आया। ओ 0 है अभी तो। सस्पिशियस में क्या है? रन, और रन करो बाबा। ये सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन में है अभी तो। कंपाइलर करो, अभी भी सेव नहीं हुआ। रुको रुको रुको, फिर से प्रॉब्लमेटिक। यस, ये देखो, ये मैंने किया। पहले सेव करो, कंपाइल करो, रन करो। क्यों भैया चल क्यों नहीं रहे? अब सस्पिशियस तो निकल गए, आगे स्टोरी क्यों नहीं बढ़ा रहा है? ओ, हम गलती जो करके बैठे हैं इसकी वजह से नहीं चल रहा। ये देखो, देखा स्टूडेंट्स? यस सर तो फिर से बताओ क्या था मुझे? अरे और लूप को टर्मिनेट करके रख, ये Yes, sir. यस, इसलिए नहीं चल रहा था। तो देखो छोटी छोटी गलतियां, फिर से इसको जरा सेव करो, ठीक करके रखो, और फिर हम रन करते हैं। आए तुम्हारे वैल्यूज? आए कि नहीं आए? हमने क्या किया ये प्रोग्राम में, जरा सीखो प्रोग्राम। अब थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन एसआईएस एंड अदर कॉलेज स्टूडेंट्स। कोई इतना डीप में नहीं जाएगा सर, इतने पॉइंटर वॉइंटर के डीप में। ठीक है, स्टूडेंट्स में भी हैप्पी कि अरे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से समझाते हैं टीचर लोग, बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन पढ़ाते क्या होंगे जरा उनसे पूछो तो सही। How to add two numbers, how to multiply two numbers, how to find out the maximum of two numbers, right? How to divide. अरे यार वो तो हमने फर्स्ट डे में सीख लिया था। If you want to create the difference among others, if you want to prove yourself that you are better than others, your chances would be higher, for selection as compared to other students. You have to create the difference. You have to learn the new things. This is what we are doing over here, right? Is that clear, students? यस हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। हाँ, अभी मैट्रिक्स एडिशन किया था कोई बच्चे। चलो हम मैट ऐड को हम पॉइंटर्स में आज करते हैं। मैट ऐड, ये मैट ऐड है, और अभी आज इसकी स्टोरी हम चेंज कर देते हैं। मैट ऐड पी यूजिंग पॉइंटर्स डॉट सी। अब हम ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था सर। ऐसा कोई करता है क्या? 8 पता नहीं 2x2 ऐड करना है कि 8x8। तो मैंने एक पॉइंटर लिया, ले लिया सर, इसको भी हटाओ। ये सर क्या आउटडेटेड प्रोग्राम लिख के रखा है? वी आर आईटी प्रोग्रामर, वी शुड नॉट वेस्ट मेमोरी, वी शुड यूटिलाइज द मेमोरी एज पर रिक्वायरमेंट। जितना जरूरत है उतना ही मेमोरी एलोकेट करो बस। तो मैंने 3 पॉइंटर रखे हैं सर, ये बहुत अच्छा है। अब before you ask the memory, elements from the user,
पहले ये जो साइज पूछा है ना, साइज, कि भाई व्हाट इज द साइज ऑफ योर मैट्रिसेस व्हिच यू वांट टू ऐड, तो उसके लिए अब एक काम करो, इंट स्टार, याद करो कुछ, मैलॉक, मैलॉक क्या, m इंटू n इंटू m इंटू n कॉमा m इंटू n इंटू 2। मैंने बोला कि भाई मैलॉक जो भी साइज दिया है 3x3 दिया है, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18 बाइट्स प्लीज मेरे ए के लिए ढूंढ के लेके आओ कहीं से भी। और 18 को फिर मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है कि इन दीज 18 बाइट्स व्हाट आई एम गोइंग टू स्टोर, वैल्यू एट स्टार, वैल्यू एट एड्रेस क्या रखेंगे हम, इंटीजर रखेंगे। So that 18 byte का block will be divided into integer type. That means 9 cells will be created and the address of the first cell is given to A. ये इतना काम मेरा मैलॉक करेगा। मैंने मैलॉक को बोला है ये यूजर ने जो साइज दिया इसका डबल मेमोरी मुझे दो, और वो मेमोरी को आप इंटीजर सेल में डिवाइड कर दो। अगर वो 50 बाइट का है तो 25 सेल में डिवाइड कर दो, 100 बाइट का है तो 50 सेल में डिवाइड करो। यही चीज मैं अब बी के लिए बोलता हूँ। बी के लिए मैलॉक को फिर से कॉल करता हूँ, मैलॉक अब मेरे बी के लिए भी इतना ही मेमोरी एलोकेट करो जितना ए के लिए है, बिकॉज द कंडीशन टू ऐड द मैट्रिसेस is the size of the two matrices should be similar, then only we can add. तो ये मेरा उतना बी के लिए हो गया। और मैं एक और बोलता हूँ सर, वो जो सी रिजल्ट रहेगा वो भी तो वही साइज का रहेगा ना। यस सर, तो मैं वो भी बोलता हूँ मैलॉक प्लीज द सिमिलर साइज शुड बी देयर फॉर सी। कितना अच्छा है प्रोग्राम, नॉट इवन अ सिंगल बाइट लेस और मोर। अब मैंने तीनों सोफा सेट अरेंज कर दिए, चेयर्स अरेंज कर दिए, सबको रहने की जगह बना दी है मैंने। मेरे मैट्रिक्स ए कहाँ रहेगी, 18 बाइट्स एलोकेटेड है, डिपेंड्स आप क्या साइज दोगे। 4x5 रखोगे तो 4 इंटू 5 इज 20, 20 इंटू 2 40 बाइट्स मैलॉक विल फाइंड आउट फॉर ए, 40 फॉर बी, 40 फॉर सी। 120 बाइट्स ही एलोकेट करेगा, एक भी बाइट एक्स्ट्रा नहीं और कम भी नहीं। स्टूडेंट्स इज दैट क्लियर, यस और नो? हेलो, यस सर। अब फॉर्मूला अगर हमारे बच्चों को याद होगा तो मैंने बताया था कि मेरा पहला स्टूडेंट्स कहां पे रहेगा, पहला नंबर कहां पे रहेगा। ए मीन्स व्हाट, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एरे का। तो आई सेड ए प्लस फर्स्ट फॉर लूप इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस सेकंड फॉर लूप। लुक एट द फॉर्मूला, क्या बात है सर। First A मतलब base address plus for loop into the number of columns plus second for loop, right? Correct है students? Students, please ध्यान दो जरा क्या हो रहा है। अब P that is second का base address plus first for loop into number of columns plus second for loop, A भी हो गया, right? Students, आप बातें कहां चल रही हैं आप देखो। अगर मैंने अब a प्लस फर्स्ट फॉर लूप इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j, तो ये तो मुझे पहले एलिमेंट का पहला एड्रेस बताएगा, फर्स्ट एरे का फर्स्ट एड्रेस। मतलब एरे फर्स्ट एरे में अगर 1 है तो 1 का एड्रेस। और ये b प्लस फर्स्ट फॉर लूप इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j, और c को भी वही स्टोरी हम सिखाएंगे, c प्लस फर्स्ट फॉर लूप इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब मुझे करना क्या है कि a प्लस आई इंटू एन प्लस जे इज द एड्रेस। वो 1000 की बात करेगा जो अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। मैंने बोला सर वैल्यू एट दिस प्लस वैल्यू एट द ये लोकेशन का, दोनों के वो लोकेशन के स्टार्टिंग वैल्यू, a का स्टार्टिंग वैल्यू तो जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस पे जो भी स्टार होगा वैल्यू एट एड्रेस, बी का जो भी फर्स्ट एड्रेस उसका वैल्यू शुड बी द वैल्यू एट दिस प्लेस, राइट स्टूडेंट्स? मैंने बोला a प्लस आई इंटू एन प्लस जे, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। तो बोले वो एड्रेस पे जो वैल्यू प्लस सेकेंड एड्रेस पे जो वैल्यू है, इट्स द वैल्यू एट द थर्ड एड्रेस, मतलब सी के एड्रेस पे जाना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर।
बेचारे बच्चे कहाँ से ब्रेन लाएंगे, सब सोशल मीडिया में डिस्टर्ब हैं। हाँ, अब मैं फर्स्ट फॉर लूप इंटू n प्लस j, ये मैंने फर्स्ट एरे को डिस्प्ले कर दिया, और अब मैं ऐसे सेकेंड फॉर लूप को, सेकेंड एरे को डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्टार b प्लस फर्स्ट फॉर लूप इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j, ये भी डिस्प्ले हो गया। और अभी थर्ड को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, थर्ड को r बेस एड्रेस फर्स्ट फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j, डन। तो इसको सेव करते हैं हम लोग, सेव किया मैंने, रन करो, रन, यस सक्सेस। क्या साइज चाहिए भाई? सर साइज आप बोल दो, 4x5, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट मैट्रिक्स 4x5 मतलब 20, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओ, आप सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें तो कितना भी एंटर कर दो, जितना जरूरत है उतना ले लेगा, बाकी छोड़ देगा। क्या कह रहे हो स्टूडेंट्स? क्या किया हमने प्रोग्राम में? हमने पॉइंटर्स यूज किया है। क्या लग रहा है आपको, कुछ भी वेस्टेज हुआ रहेगा इसमें स्टूडेंट्स? हमने हमने एरे को हटा दिया है। वी आर अ प्रोग्रामर ऑफ SIS कॉलेज, एरे हट गया है, विच इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। हमने 8x8 पहले रखा था, 8x8, 64 एलिमेंट्स ऑफ ए, 64 एलिमेंट्स ऑफ बी, 64 एलिमेंट, विच अगर हम 2x2 ऐड कर रहे हैं तो हमने इतना एलोकेशन क्यों करके रखा था, राइट स्टूडेंट्स? हेलो, घर में घर में रहने वाले दो और पूरा बिल्डिंग खरीद के रखा है बाबा, दूसरे को भी तो रहने दो। हाँ स्टूडेंट्स, प्रोग्राम ऐड करना है 2x2 और मेमोरी एलोकेट किया बोले 1000 बाइट, ये क्या है? सो नाउ henceforth as a programmer you should never waste any bytes of memory, you should allocate the memory as per the requirement. अगर मुझे अब इसको 10x10 भी रन कराना है तो ये 10x10 के लिए चलेगा, लेकिन अगर पीछे वाला जो प्रोग्राम था 8x8 और 10x10 नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये करेगा, ये करेगा। इसको जितना कम में कराना है, एक्स्ट्रा कराना है, एज पर योर रिक्वायरमेंट मेमोरी एलोकेट कर देगा, राइट? समझ रहे हैं स्टूडेंट? यस। अब इसका दूसरा ब्रदर भी था। दूसरा ब्रदर कौन है पता है? मल्टीप्लिकेशन वाला। वो किधर है? वो भी किधर घूम रहा होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इधर ही बैठा है बेचारा। इसको भी सेव एज कर दो, मैट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग पॉइंटर डॉट सी। इसमें भी 8x8 सर, क्या है सर? ऐसा नहीं चलता है भाई। मैट्रिक्स एडिशन है कि क्या किया है इसमें? ये तो एडिशन है बाबा। मल्टीप्लिकेशन नाम क्यों दिया है? मल्टीप्लिकेशन किया नहीं क्या अभी तक स्टूडेंट? सर आपने एडिशन वाला सेव किया और उसमें ही मल्टीप्लाई वाला चेंजेस कर दिया ना, इसलिए शायद वैसे हो गया। हाँ, ये तो सब गड़बड़ है, तो मेरे सिर पे बैठा है अभी लिखने के लिए, ठीक है? अरे 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 अरे, क्या करेंगे अभी? चलो, मैं क्या करूं, करूं कि तुम लोग को छोड़ दूं स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. क्या करें भाई, कंटिन्यू करें कि छोड़ें? बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते, खुद सोचते हैं कोई दूसरा बोल दे, क्यों नहीं बोल रहा है कोई, राइट? और जो कभी नहीं पढ़ता वो तो जरूर चाहता है कि सर को कोई बोल दे स्टॉप करो सर, राइट काजोल? रिस्क नहीं ले, कितने अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये सर भी सब समझते हैं, यही प्रॉब्लम है, इसलिए हाँ बोलो भाई। डेफिनेटली, वेयर वी आर राइट नाउ, हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं अभी, जरा देखे तो सही। FYBS Files के आगे। कहाँ पे आ गए? और ये क्या Files इंपरेटिव? हो गया। वो बोल रहे थे फाइल में है। हम लोग जरा चेक Files। चेक चेक करते हैं जरा सिलेबस कहाँ पे है। वो अभी यूनियन बचा हुआ है, राइट? हाँ एक ही अभी बचे। नहीं रुको ना, अभी जो मैं कर रहा था ये कर रहा था, देखो ये पासिंग एन एरे एलिमेंट्स टू अ फंक्शन, ये कर रहा था थोड़ी देर पहले जो कर रहा था ना। आप
पूरा एरे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, कैसे फंक्शन को पास करते हो, राइट? अभी देखा था ना डिस्प्ले, वन डायमेंशनल डिस्प्ले, टू डायमेंशनल डिस्प्ले, राइट? फिर देखो पासिंग Yes. एन एंटायर एरे टू अ फंक्शन, टू डायमेंशनल एरे भी पास करना है तो कैसे होगा, राइट? यह ना स्टूडेंट्स, और ये मेमोरी मैपिंग भी अभी अभी थोड़ी देर पहले किया एरे पॉइंट इसमें मैट्रिक्स एडिशन में, राइट? किया कि नहीं किया? Yes. यस। तो अभी थोड़ा यहाँ पे बहुत कुछ बचा हुआ है। स्टार एलियन ये तो सब मैंने किया था ना। स्टार एलियन इज लेंथ, सीपी वाइज कॉपी, कैट इज कॉन्कैटिनेशन, सीएमपी इज कंपैरिजन। चलो यूनियन है, और कोई है यहाँ पे? अब बस इतना ही है क्या? हाँ. यस ओहो, स्ट्रक्चर तो बहुत कुछ किया है। वाई यूज स्ट्रक्चर, क्यों हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं? हमने क्यों, क्या आंसर है हमारे पास? वाई टू यूज स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स? Yes, different data types can be clubbed together under a single name for that reason. जैसे मान लो कोई बोलता है स्टूडेंट का डिटेल, तो किस में यूज करूं? आपको क्या लगता है? एरे में? नहीं सर, स्ट्रक्चर बनाओ उसका। कॉलेज का डिटेल किस में स्टोर करें? सर स्ट्रक्चर, राइट? तो स्ट्रक्चर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? हाउ डू यू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर? सर स्ट्रक्ट नेम एंड द मेंबर्स, जितने भी मेंबर आपको रखने हैं उसके अंदर, राइट? Yes. हाउ डू एक्सेस द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, कैसे एक्सेस करते हैं? तो अगर मैंने मान लो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय बनाया है और उसके अंदर एमपी आईडी, एमपी नेम ये सब हैं, तो उसका एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्ट और एम्प्लॉय ई। तो आई कैन से ई डॉट एम्प्लॉय आई, ई डॉट एम्प्लॉय नेम। हाउ यू एक्सेस देम? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नेम, राइट? Yes. यस। तो ये स्ट्रक्चर में भी हम पॉइंटर्स लाएंगे। थोड़ा हमारा जो सिलेबस होना चाहिए सबसे अलग होना चाहिए। स्ट्रक्चर में भी हम फंक्शंस लाएंगे, मतलब जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना सबको एक मिक्स करेंगे। स्ट्रक्चर में फंक्शन कैसे आएगा, पॉइंटर कैसे आएगा। एरे का तो स्ट्रक्चर मैंने कर लिया है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि नहीं किया है स्टूडेंट्स? एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट? यस सर Yes. So don't worry. Then we'll see what is the difference between structure and union. Syntax for declaring need for union in C programming. बोले C programming में union का क्या जरूरत है? चलो हम करेंगे बाद में, ठीक है? So when you are having any exam, किसी ने बताया तुमको कभी? Students? नो सर बताया नहीं कुछ बताया नहीं है. Okay. And what about the portion of the other teachers? उनका कैसा चल रहा है भाई, दूसरे टीचर्स का? PM का भी यूनिट 5 ऑलमोस्ट. अभी देखो हमारे सभी प्रैक्टिकल देख लो, हमने तो कई बार देखे हैं लिस्ट। हमारे कई प्रैक्टिकल, जैसे मान लो हमने देखा व्हाट इज दिस फंक्शंस का, राइट? अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर टाइम और नॉट, क्या है मैंने। और फिर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग, फंक्शन से करना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, वो भी किया है ना सब? इतने तो किए हैं मैंने। एरेज में जितना चाहिए उतना किया है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन अभी करना है, कर दो। वहां पे जो प्लस का साइन है वहां माइनस कर दो, राइट? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? यस सर राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो जहां पे स्टार a प्लस आई इंटू एन प्लस जे है, प्लस किया, वहां पे केवल एक साइन चेंज करोगे तो पूरा माइनस में हो जाएगा, राइट? राइट अ प्रोग्राम using pointers to compute the sum of all elements stored in an array. Using pointer कैसे करेंगे सर? Write a program to find out sum of all the elements using array. कैसे करेंगे सर? Using pointers to compute the sum of elements of an array. कैसे करें हम? भी कर सकता है, जाने तो बाद में करेंगे।